خوش آمدید دوستوں، میں ہوں ابتسام زاہد اور اب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا جنم ایسے علاقے میں ہوا جہاں عورت کے لیے قوانین بہت سخت ہیں۔ قانون کے بجائے روایات و رواج کہوں تو زیادہ صحیح ہوگا۔ ہمارا گھرانہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ والدین نے مجھے بچپن میں پیار دیا اور میں ایک نارمل شخصیت کی حامل فرد تھی۔ جب میٹرک میں تھی بابا جان نے میری نسبت چچازاد احمد سے طے کر دی۔ میں بہت خوش تھی۔ احمد مجھے پسند تھا، آپس میں محبت تھی، لیکن اس وقت تو ہم معصوم تھے۔ ایک ہی گھر میں رہتے تھے جس کو دیوار کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا کیونکہ بچے بڑے ہو گئے تھے۔ ہمارے والدین کا خیال تھا کہ میری اور احمد خان کی شادی 2 سال بعد کر دی جائے، چونکہ ہمارے خاندان میں بزرگ اپنے بچوں کی شادی میں دیر کو بدشگونی خیال کرتے تھے۔ جن دنوں میں نے میٹرک پاس کیا، کالج میں داخلے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ پس و پیش کے بعد والد صاحب نے گرلز کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میں نے سائنس میں داخلہ لیا کیونکہ دل میں ڈاکٹر بننے کی آرزو تھی۔ والدین نے منع نہ کیا کہ پڑھتی ہے تو پڑھنے دو، جب شادی کا وقت آئے گا تو شادی بھی کر دیں گے۔ فرسٹ ایئر میں تھی کہ ایک دن خالہ جان بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے آ گئیں۔ مجھے خوشی ہوئی، تفریح کا کوئی موقع نکلا۔ کافی دنوں سے بوریت تھی جو کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ زاد کی شادی پر ہم اور چچا کے اہل خانہ اکٹھے 2 دن پہلے اسلام آباد گئے تاکہ شادی کے انتظامات میں ہاتھ بٹا سکیں۔ جاتے ہی میرے بھائی اور چچا زاد خالہ کے بیٹوں کے ساتھ کاموں میں لگ گئے۔ بارات والے دن ہم سب بڑے اہتمام سے تیار ہوئے۔ احمد نے بھی خوبصورت اور منفرد لباس زیب تن کیا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں خوب ہی چچ رہا تھا اور میں بار بار اپنے ہونے والے جیون ساتھی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، میں بھی بہت خوب تیار ہوئی تھی۔ میرا لباس سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ میرا منگیتر میری طرف دیکھنے کی بجائے کسی اور سمت دیکھ رہا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، پھر سوچا کہ خامخواہ شک کر رہی ہوں۔ وہ تو ویسے ہی اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہر لڑکی کو دیکھنا لڑکوں کی فطرت ہوتی ہے۔ رخصتی کا وقت آ گیا، دلہن کو دولہا والے لے کر چلے گئے۔ جب ہم گھر واپس آئے، میں نے احمد کو کھویا کھویا پایا۔ پوچھا کیا ہوا احمد، کیوں اس قدر کھوئے کھوئے ہو؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا تم ہی کو بتاؤں گا اپنے دل کی بات، اور کسے بتاؤں گا؟ لیکن پھر تم کو میری مدد کرنی ہوگی، عہد کرو میری مدد کرو گی نا؟ میں نے عہد کر لیا کہ احمد تو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ اس نے مجھ پر اعتماد کیا، وہ شروع سے مجھ پر اعتماد کرتا تھا۔ کہنے لگا زرتاشا مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، کیونکہ تم میری ہمراز ہو اس لیے دل کی بات تم ہی سے کہتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ نام تو بتاؤ۔ اس کا نام زرغونہ ہے۔ اچھا وہ؟ میں نے کہا وہ تو میری دوست ہے اور ہم جماعت بھی۔ دراصل وہ خالو جان کے رشتہ دار ہیں، اسی وجہ سے وہ بھی خانزادی کی شادی میں آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ آئی تھی۔ تو کیا تم اس کو پہلے سے جانتی ہو؟ ہاں احمد، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میری پسندیدہ دوست ہے، میری کلاس میں پڑھتی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، میری خوش قسمتی ہے کہ اب میں تمہارے ذریعے آسانی سے اپنے دل کی بات اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ تم نے عہد کیا ہے کہ میری مدد کرو گی، تو کیا میری مدد کرو گی؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے بجھے ہوئے دل سے کہا۔ بھلا میں کیسے انکار کرتی؟ کیا کوئی اپنے محبوب کو بھی انکار کر سکتا ہے؟ تو پھر تم اسے میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور شادی کا تمنائی ہوں۔ کہو اچھا؟ میں نے جواب دیا ہاں بھائی اچھا، میں ضرور تمہارا پیغام اسے پہنچا دوں گی۔ حالانکہ میرے دل پر قیامت گزر رہی تھی، لیکن محبت تو نام ہے قربانی کا، اپنے محبوب کو خوش دیکھنے کا اور اس کی خوشیاں پوری کرنے کا۔ میں نے اگلے روز کالج جا کر زرغونہ کو احمد کا پیغام پہنچا دیا۔ وہ تو جیسے پہلے سے ہی منتظر تھی کہ دونوں طرف لگن برابر لگی ہوئی تھی۔ اس نے صد اشتیاق بات سنی اور جواب میں ایک پرچے پر شعر لکھ کر دیا کہ اپنے کزن کو دے دینا۔ شعر کا مفہوم اظہار محبت تھا۔ میں نے یہ پرچہ گھر آ کر احمد کے حوالے کیا، جیسے اپنے اپنوں کی امانت کو حوالے کرتے ہیں۔ اس نے پڑھا تو باتیں کھل گئیں، بس پھر کیا تھا میں تو ایک پیغام رساں بن گئی۔ دونوں میری معرفت، کاغذ پر حروف کشیدہ کرتے اور ہم کلام ہوتے۔ میں عہد کر کے پھنس گئی تھی، ہر روز کرب سے گزرتی، مگر اپنے محبوب کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ناخوشگوار فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ میرے دل کی حالت دگرگوں اور میری محبت زخمی ہوتی گئی اور ان کا دلی تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔
यही सोचती थी कि जब अहमद मुझे नहीं जरगुना को चाहता है तो उसकी मोहब्बत और खुशियों पर जरगुना का हक बनता है, मेरा नहीं। मुझे ऐसी शादी मंजूर न थी जब जान चुकी कि अहमद किसी और से प्यार करता है। अक्ल यही कहती थी तुम रास्ते से परे हो जाओ, उनको राह दो, आगे उनकी किस्मत। रब ने तकदीर में लिखा होगा तो उन्हें मिला देगा और हमेशा के लिए एक कर देगा। अहमद तो अपनी कामयाबी पर फूले ना समाता था। दिन में कई बार आकर मुझसे जरगुना के बारे में बात करता और चाहता था कि बस में इसकी महबूबा ही का तज़किरा करती जाऊं। कॉलेज में वो कैसी लड़की है, आज उसके साथ दिन कैसा गुजरा, क्या कहती थी मेरे बारे, क्या बातें हुई। लम्हे लम्हे की रिपोर्ट सुनना चाहता था वो। मैं बादल नाखास्ता इसको लम्हे लम्हे की हर बात बताने पर मजबूर थी, महज अहमद को खुश देखने के लिए। जरगुना की चाहत में मेरा कजिन मजनू सा हो गया। इसकी मोहब्बत में दिन रात इसी के ख्यालों में गिरफ्तार था। दोनों फोन पर बातें करते और फिर मुलाकातें होने लगीं। सितम ये कि दोनों ही मुझ पर एतबार करते हुए मुझे अपना राज ना जानकर हर बात बताते और मैं उनसे अपने सुलगते हुए जज्बात छुपाती। दोनों को मालूम न था कि मैं अहमद से कितनी मोहब्बत करती हूं। खुदा के बाद अगर किसी इंसान से वालिहाना मोहब्बत थी तो वो अहमद था, जिससे एक बार भी न कह सकी कि अहमद में भी तुमसे मोहब्बत करती हूं। जरा मेरी तरफ भी देख लो, मेरे दिल की क्या हालत है। मैं किसको बताऊं, तुम्हारी और जरगुना की मैं राजदार हूं, मगर मेरा गमगुसर, मेरा राजदार कोई नहीं। अहमद का ख्याल था कि वो अपनी मर्जी की शादी कर सकेगा। वो माँ बाप का बेहद चहीता था और अभी जेर तालीम था, इसलिए वालिदैन भी शादी के लिए नहीं कहते थे। उनका ख्याल था 2 साल बाद जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगा तो उसकी शादी का मरहला आएगा, तब ये बात करेंगे। एक दिन मुझे जरगुना ने बताया कि इसके वालिदैन उसकी शादी कर रहे हैं। ये सुनकर मैं सकते में रह गई, क्योंकि अहमद का वालिहानापन देख रही थी। जानती थी इस खबर से मेरे कजिन को कितना सदमा होगा। वो तो बर्दाश्त भी ना कर पाएगा इस सदमे को, इस पर तो क़यामत गुजर जाएगी। और जरगुना मेरे सामने आंसू बहा रही थी कि वालिद सख्त हैं, हरगिज उसकी ना सुनेंगे। इसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। बस दिल पर पत्थर रखकर अहमद को बताना था, मगर मैं जरगुना पर खफा हो गई कि ये क्या तमाशा है कि अहद किसी से और शादी किसी से। अगर ऐसी ही मजबूर थी तो मेरे कजिन को पहले दिन ही उम्मीद के रास्ते पर ना चलाया होता। इसे इतनी दूर तक अपने साथ सफर कर लिया, और जब उसने तुमको अपनी मंजिल समझ लिया तो अब बुज़दिली दिखा रही हो और तुमको अपनी मजबूरियां सुझाई दे रही है। समझ में ना आता कि कैसे कहूं अहमद से, मगर फिर दिल पर पत्थर रखकर बताना ही पड़ा। यह भी जरगुना का पैगाम था जो इस तक पहुंचाना लाजमी था। जब मैंने बताया कि जरगुना की शादी है तो वो हंसकर बोला, जरताशा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। मैंने कहा सच कह रही हूं, मुझे जरगुना ने कहा है कि तुमको बता दूं। वो कुछ परेशान सा हो गया और फिर उसने जरगुना को फोन किया। जब उसने बताया कि ये बात सही है तो अहमद ने फोन रखा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जब मैं इसके कमरे में गई वो अपने बिस्तर पर लेटा रो रहा था। तसल्ली देने की कोशिश की मगर उसने कुछ ना सुना, जैसे गूंगा, बहरा और अंधा हो गया हो। वो बस रोता ही रहा और मैं परेशान होकर उसके कमरे से निकल आई। किसी की खातिर अहमद की आंखों में पहली बार आंसू देखकर सहम गई थी। अपने कमरे में आकर मैं भी खूब रोई, क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसे रोता नहीं देख सकती थी। वो इस कदर सदमे में चला गया कि बीमार पड़ गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उधर जरगुना की मंगनी हो गई और शादी की तारीख करीब आ गई। इस रोज मैं खूब रोई जब मुझे जरगुना की शादी का कार्ड मिला। मेरा कजिन भी उसी दिन अस्पताल से घर वापस आया था। मैं अपने महबूब कजिन की हालत देखकर जरगुना को दिल ही दिल में कोस रही थी, जिसकी वजह से अहमद की हालत ऐसी हो गई थी और इस बेवफा से इतना भी ना हो सका कि एक तसल्ली का खत लिख देती, जो हर रोज मोहब्बतनामा लिखकर मुझे दिया करती थी। अब उसने अचानक ही तर्क ताल्लुक कर लिया था। इस वजह से अहमद और ज्यादा गमज़दा था। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो वो अपना कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट लेने आई हुई थी। मैंने इसे देखकर मुंह फेर लिया। दौड़कर मेरे पास आई और मेरे दोनों हाथ पकड़कर इल्तिजा करने लगी, जरताशा मुझसे मुंह मत फेरो, मेरी बात सुन लो, आज मेरा आखिरी काम कर दो, फिर शायद हम कभी मिल सकेंगे या नहीं। खुदा मालूम मैं मजबूर हूं और मेरी मजबूरी इस खत से अहमद पर ही नहीं तुम पर भी जाहिर हो जाएगी। इसकी आंखों में आंसू भरे थे, चेहरा जर्द और चेहरे पर ऐसा कर्ब था कि मैं समझ गई कि वो कुछ खुशी से अहमद से जुदा नहीं हो रही, वाकई मजबूर है। मैंने खत इससे ले लिया।
घर आकर अपने कमरे में बैठकर जरगूना का खत पढ़ा। लिखा था, प्यारे अहमद, आज तुमको ये आखिरी खत लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। इस वक्त जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मैं कभी सोच भी ना सकती थी कि मैं तुमसे जुदा कर दी जाऊंगी, मगर ये मेरी सौतेली माँ ने कराया है। मैं कब तुमसे जुदा होना चाहती थी, लेकिन इन जालिमों ने जुदा होने पर मजबूर कर दिया। अब सिर्फ तुमसे ही नहीं, शायद मैं हर किसी से, इस दुनिया से और अपनी जिंदगी से भी जुदा होकर चली जाऊंगी। मैं आज बाबा के सामने बोल पड़ी। उन्होंने मुझे मारा भी, तभी मैंने गुस्से और रंज में कुछ खा लिया है। वो एक जहरीली दवा थी। उस वक्त मेरे दिल में जलन हो रही है और खांसी के साथ मुंह से खून आया है। तभी बहाने से दौड़ी कॉलेज आई हूं ताकि जरताशा को तुम्हारे नाम ये आखिरी खत दे सकूं। मालूम नहीं वापस जिंदा घर पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। बेशक मेरा इस तरह मर जाना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा, इसलिए इस खत के साथ वो दवा इरसाल कर रही हूं कि मेरी मौत की खबर सुनो तो बर्दाश्त कर लेना। अगर बर्दाश्त ना कर सको तो फिर उसे खा लेना, क्योंकि मैंने भी इसी को खाया है। अगर मेरी मौत के बाद अपने जिंदा रहने का दम हो तो फिर जरूर उस पुड़िया को मिट्टी में गिरा देना। मैंने तो सिर्फ वफा की खातिर ये जहर खाया है, क्योंकि तुमसे जुदा होकर मैं किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकती। कल मेरा निकाह होना था, लेकिन कल मेरा घर शादी से कब्ल मातम घर में बदल चुका होगा। मैंने घर वालों के आगे हाथ जोड़े, बहुत मिन्नत समाजत की, मगर उन्होंने अपना फैसला ना बदला, तो अब मैं भी मजीद नहीं जीऊंगी। उनको कभी मुआफ ना करूंगी। रोज हश्र जरूर उनकी दामनगीर हो जाऊंगी जिन्होंने मुझसे मेरी खुशियां और जिंदगी छीनी है। खुदा इनको इस दुनिया में भी जख्म दे जिन्होंने हमारे दिलों पर जख्म लगाए। कोई उनसे पूछे कि प्यारों की जुदाई किस कदर दर्दनाक होती है। तुम्हारे दिल में बहुत से गमों के जाल बिछाकर जा रही हूं, मुझे मुआफ कर देना। इस सब्र का अजर तुमको अल्लाह पाक देगा कि तुमने मोहब्बत करते हुए भी कभी मेरे तन को मेला नहीं किया। हम पाकबाज थे, यही अमर हमारी सच्ची मोहब्बत की गवाही बनेगा। मैं चली जाऊंगी, अब तुम्हारे साथ बस मेरी यादें ही रहेंगी। हिम्मत ना हारना, ये भी मत सोचना कि हम जुदा हो गए हैं। नहीं, तुम ही मेरे सच्चे और हकीकी साथी हो। हम मरकर भी जुदा नहीं हो सकते। यहां नहीं तो क़यामत के रोज जरूर मिलेंगे। इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूं, घबराए हुए दिल के साथ खत लिख रही हूं। खत पढ़कर मैं सुन हो गई। क्या वाकई जरगोना ने इस वक्त जहर खा रखा था जब वो मुझे खत दे रही थी? इसके घर का फासला कॉलेज से सिर्फ 5 मिनट पर था, फिर भी वो इस हाल में क्यों कर घर तक पहुंची होगी? इसका चेहरा इस वक्त सरसों के फूल की तरह जर्द था और आंखें कर्ब से खींची हुई थीं, शायद कि वो मौत की कशमकश से गुजर रही थी। दिल ने कहा कि यह खत अहमद को मत देना, मगर मैंने कहा कि नहीं, इसे देना ही होगा, वरना वो उम्र भर उम्मीद की कश्ती में सवार रहेगा। बेशक ऐसे जख्म जल्द नहीं भरते, मगर वक्त उनको आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल कर दिया करता है। उस वक्त तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई जरगूना ने जहर फांक लिया होगा। क्या इस दौर में भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है? मैंने वो खत जो आखिरी अमानत थी जरगूना की, अहमद को पहुंचा दिया। वो खत पढ़कर बहुत परेशान हुआ, लेकिन मैंने इसे वो जहर नहीं दिया जो इस खत में लपेटकर मुझे जरगूना ने दिया था। इसको मैंने गुस्ल खाने की मोरी में बहा दिया। नहीं मालूम वो जहर था या नहीं, मगर मेरा दिल यही कहता था उसको तलफ कर 200 मैंने कर दिया। जरगूना वाकई जान से गुजर गई। जब यह खबर अहमद को मिली, वो मरने के करीब हो गया। इसे एक बार फिर अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां कई दिन दाखिल रहा, आखिर घर आ गया। अब हर वक्त जरगूना की याद में रोना और उसके साथ गुजरे एक एक लम्हे को जहन में लाकर तड़पना। मैं दिन रात अपने कजिन की सेहत के लिए दुआएं करती थी। आखिर अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली और अहमद रफ्ता रफ्ता सेहतयाब होने लगा। कुदरत ने इस पर रहम किया कि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत बाकी थी। मैंने इसको जिंदा रहने का दर्स दिया और हौसला बढ़ाने में दिन रात एक कर दिए। हर वक्त इससे जरगूना की बातें करती, जिससे इसके दिल का गम हल्का होता जाता था। एक रोज जबकि वो एक दर्द भरा गाना सुनकर रो रहा था, मैंने टेप रिकॉर्ड को बंद कर दिया और उससे कहा, मेरी तरफ देखो। तुम तो मर्द होकर रोते हो और मैं औरत होकर नहीं रोती। हालांकि मैं तुमसे इससे भी ज्यादा मोहब्बत करती हूं जितनी जरगूना तुमसे करती थी, क्योंकि मोहब्बत करने के बाद भी मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत को जाहिर नहीं किया, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम पर अपनी मोहब्बत को निछावर जरूर किया। क्या कोई लड़की जो किसी से मोहब्बत करती हो वो अपने महबूब की खुशी के लिए ऐसा कर सकती है? तुम क्या जानो मैंने किस कदर दर्द सहा है, फिर भी इस दर्द को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। मेरी मोहब्बत का हौसला देखो,
मरने वाले एक बार मर कर दुखों से जान छड़ा जाते हैं, मगर जो जिंदा रहकर दुख सहते हैं हौसलामंद तो वही होते हैं। कुदरत को तुम्हारा और जरगुना का मिलाप अगर मंजूर ना था तो उसे मशीयत ईज़दी समझकर सब्र करो और मेरी तरह हौसलामंद बनकर ये दुख बर्दाश्त करो। ऐसा कहते हुए मेरे रुखसारों पर भी आंसू बह निकले। तब उसके दिल पर वाकई असर हुआ। उसने मेरे बारे में सोचा। चंद दिन सोचता रहा होगा कि वालिद साहब और चचा जान ने हमारी शादी का ऐलान कर दिया। तब अहमद ने उनके फैसले पर इनकार नहीं किया, खामोशी से बुजुर्गों के सामने सर झुका लिया। आज हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब जरगुना की याद आती है हम दोनों को एक साथ रुला डालती है। खुदकशी हराम है। उसने अहमद को न पाने के गम में हराम मौत को गिले लगाया है। खुदा उसको मुआफ करे। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।